وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 112۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ جب کہا حواریوں نے، جو ان کے ساتھ نصارہ تھے، ان کے دوست، ان کے ساتھ، کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب اس چیز کا استطاعت رکھتا ہے، یعنی یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے ایک دسترخوان، ایک سجا سجایا دسترخوان، یعنی کھانوں کے ساتھ لدا ہوا ایک دسترخوان آسمان سے اتار دے، آسمانی کھانے ہم دیکھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو ایسی باتیں، ایسی ڈیمانڈ نہ کرو۔ یعنی کیونکہ انہوں نے ایک ایسی ڈیمانڈ کی تھی کہ معجزہ مانگا تھا کہ آسمان سے دسترخوان پورا اترے اور پھر وہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے۔ کسی بھی مومن کے لیے جب وہ اللہ سے کوئی معجزہ مانگ لے، بہت سارے معجزوں کا، جب بہت سارے، آپ کو پتہ ہے کہ صالح علیہ السلام سے جو قوم سمود تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے، ہم مان لیں گے صالح علیہ السلام آپ کو، اگر اسی کھڑے ایک جگہ پر کہہ رہے تھے کہ اس پہاڑ سے ابھی ہمارے سامنے سے ایک گابن اونٹنی جو ہے، اللہ اکبر، وہ برآمد ہو جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن بعد میں نہ مانا تو پھر اللہ نے کیسا عذاب دیا، ایسا عذاب کہ کلیجے پھٹ کے ان کے اور اپنے گھروں میں، جو بڑی ترقی والی قوم تھی، وہ لوگ جو پہاڑوں میں گھر تراش رہے تھے، اور بڑے بڑے، اور آج بھی لوگ حیران ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور لوگ حیران ہیں کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا جب انہوں نے اونٹنی کو، جو معجزہ تھا، اس کی حلاوتی کی مانگا بھی خود، پھر خود ہی اس کی کونچیں کاٹ دی۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ اب معجزہ، دیکھیں معجزہ جب مانگا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے تو ایسے معجزات نہ مانگو۔ یعنی کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ایسے معجزات اللہ سے فرمائش کرے، کیونکہ ایسی فرمائش تو عام طور پر کافر ہی کرتے ہیں۔ البتہ جب انہوں نے یہ وضاحت کی، خدا نخواستہ اس فرمائش کی منشا ایمان کا فقدان نہیں، بلکہ جو انہوں نے کی تھی نا، ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے جو کیا وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھ لیں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ نعمتوں کو دیکھ کر اطمینان حاصل کر لیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ اکبر، دعا فرمائی۔ جو دسترخوان اترا یا نہیں اترا اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ قالوا نريد ان ناكل منها، یہی چاہتے تھے کہ وہ ہم اس میں سے کھائیں، فتطمئن قلوبنا، اور ہمارے جو دل ہیں وہ اطمینان پا لیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بے شک ہم سے جو بات کی جا رہی ہے اس کی تصدیق ہو جائے، اس کو سچ تھی، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہ۔ یہ تھی وہ جو انہوں نے اپنے مطالبہ کیا جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تم مومن ایمان ہو تو ایسی سوال مت کرو۔ انہوں نے اب کیا کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم، نمبر ایک جو وجہ بتائی انہوں نے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو ہمیں کھانا مل جائے، جنت سے ہمارے لیے کھانا ملے، اور اس معجزے کے مشاہدے کے بعد ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، نیز ہمیں آپ کی صداقت کی بھی کبھی دلیل مل جائے گی کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب ایسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہم لوگوں کو بتائیں گے، اس طرح لوگ بھی ہماری بات کو مان کر ہدایت پر آ جائیں گے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ نہیں پتہ کہ اس کے بعد جو مائدہ انہوں نے مانگا دسترخوان اترا کہ نہیں اترا۔ 114 نمبر آیت میں اللہ فرمانے قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر اے اللہ تو اتار دے کر دسترخوان، کس سے؟ آسمان سے۔
मिन समाई तकूनु लना ईदन, ताकि वो दिन हमारे लिए ईद का दिन हो जाए। इसी से लिया जाता है कि ईद खुशी का दिन और खाने पीने का दिन है। लना ईदल लि अव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका, और हमारे बाद में आने वालों के लिए भी एक निशानी। मिनका तेरी तरफ से, वर्जुकना व अंता खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह हमें तो रिज़्क दे, तो बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। अब अल्लाह सुब्हान व तआला का ये जवाब जो है ये ऐसा है कि जिसमें जो लोग कहते हैं कि मायदा नहीं उतरा था वही दुरुस्त लगता है कि अल्लाह ने कहा क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा, अल्लाह ने कहा कि मैं जो ये कह रहे हैं उतार दूंगा, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मन्नो सलवा भी उतारा अल्लाह सुब्हान व तआला ने, और अल्लाह तो तेरे लिए कोई मसला नहीं है। अलैकुम, लेकिन जो तुम पर फमन यकफुर बादु मिनकुम, फिर जो भी कुफर करेगा ना, नाशुक्री करे इसके बाद, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबल ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, तो फिर मैं उसको ऐसा अज़ाब दूंगा जो जहान में इससे पहले किसी को नहीं दिया होगा। अल्लाह अकबर। देखिए असल बात तो इम्तहान है। अगर हमारे सामने सब कुछ ज़ाहिर कर दिया जाए, जन्नत और जहन्नम भी आ जाए, सब कुछ आ जाए और फिर मोइज़ा आ जाए, तो उसके बाद जो नहीं मानेगा तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी पकड़ आ गई। यहाँ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये गैब के पर्दे में अपनी सारी चीज़ें छुपाई हुई हैं, और जो हकीकत है वो नज़र आ रही है कि क्या है। लेकिन अगर ज़ाहिर कर दिया जाए, जैसे मैंने पहले कौम समूद के बारे में बताया, बहुत सारी कौमों ने मोज़े मांगे और मोज़े दिए गए उनके कहने पर, लेकिन जब इनकार किया तो फिर बड़ा सख्त अज़ाब भी आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये तकाज़े करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अहले मक्का मुशरिकीन जो थे, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर ईमान ले आएंगे, अगर आप कह रहे हैं कि आप रसूल हैं तो हमें कोई हिस्सी मोज़ा दिखाएं जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। तो वो भी कौन से मान गए थे? जो अल्लाह अकबर, उनमें से कितने लोगों ने माना? इसी मोइज़े के बाद भी कोई नहीं मानता वही है जिसका दिल में ईमान यकीन कर ले, दिल से यकीन कर ले ईमान पर, तो वही मानता है। और इस मक्के की ज़मीन को कहा गया कि आप इस तरह करें कि इसको सरसब्ज़ ज़मीन बना दें, यहाँ चश्मे फूट पड़े। हम पढ़ेंगे बनी इसराइल में, वहाँ भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि जो ये चाह रहे हैं अल्लाह इसको करने पर कादर है, लेकिन अगर इसके बाद ये ना माने तो ऐसा अज़ाब दिया जाएगा कि इससे पहले किसी को, वही अल्फाज सेम। देखिए मोइज़े को बाद जब ना माने तो फिर अल्लाह की तरफ से बहुत, क्योंकि जब उन्होंने मोइज़ा मांगा था कौम समूद ने, फिर उन्होंने उसकी मुखालफत की, कूचे काटी, तो स्वालिह अलैहिस्सलाम ने उनको कहा अब 3 दिन है, खा पी लो। अब अल्लाह का अज़ाब आया चाहता है कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, तुमने कुफर कर दिया। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि या फिर यह है कि आपकी उम्मत के लिए हमेशा के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा जाए, ताकि जब कोई भी कितने भी गुनाह कर ले फिर सच्चे दिल से पलटाए तो अल्लाह उसको माफ़ कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आप रहमतुल आलमीन हैं, आपने कहा मेरी उम्मत के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखना। तो यही असल बात है कि हमें समझ में आ जाए। लोगों को हक़ की तरफ पुकारने का काम अगर से दाई जो है, दाई अल्लाह जो होता है वो अंजाम देता है, मगर लब्बैक कहना, उसको मानना हमेशा अल्लाह की तौफीक से होता है। दावत की सदाकत को दलाइल से जान लेने के बाद भी बहुत सारी रुकावटें बाकी रहती है। असल बात है ये कि अल्लाह की तरफ से हर वक्त इंसान को रिज़्क मिल रहा है। रिज़्क तो मिल ही रहा था उनको भी, हत्ता कि ज़मीन में इंसान के लिए रिज़्क का दस्तरखान बनी हुई है, सब कुछ तो उगा रही है। हाँ, ये ज़मीन भी तो हमारे लिए दस्तरखान बनी हुई है, और आसमान भी हमारे लिए रहमत की बारिशें बरसा रहा है, उसका मावन होता है। तो इसलिए सख्त तंबीह की गई कि जो रिज़्क तुम्हें, असल में वो जो रिज़्क तुम्हें असबाब के पर्दे से मिल रहा है उसी को लो। तुम जब असबाब के पर्दे खोल कर तुम्हारे पास आ जाएगा ये अल्लाह का मायदा जो है, जो तुमने मांगा है दस्तरखान, तो उसके बाद फिर जिसने नाशुक्री की, कुफ्र किया, तो फिर उसको अल्लाह ऐसा अज़ाब देगा कि उससे पहले किसी को नहीं दिया होगा। तो इम्तहान तो इसी बात का है कि ज़ाहिरी पर्दा अगर हटा दिया तो फिर इम्तहान कौन सा रह गया। अल्लाह अकबर। व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे कि ए ईसा इब्न मरियम आ अंता कुल्ता लिन्नासी, क्या आपने कहा था लोगों से इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैनी मिन दूनिल्लाह, कि मुझे और मेरी माँ को भी दोनों को बना लो इलाह बना लो, अल्लाह के साथ उनको भी बना लो इलाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ, अल्लाह अकबर। काला सुबहानक, ये रोज़े महशर है और ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया जाएगा।
ईसा अलैहिस्सलाम पर इतना खौफ होगा अल्लाह का, अल्लाह अकबर। तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे कि अल्लाह पूछेगा कि क्या ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, क्या आपने कहा था और आपकी माँ ने कहा था कि हमें भी इलाह बना लो, कि अल्लाह को छोड़कर, या आपने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को भी अल्लाह के साथ इलाह में बना लो। ये तसलीस का अकीदा जो था पहले, अल्लाह एज ए फादर, ईसा अलैहिस्सलाम जो है ईसाई ने बनाया, अल्लाह अकबर। ईसा एज ए सन, और अल्लाह अकबर जो मरियम अलैहिस्सलाम है वो एज ए मदर, यानी कि अल्लाह, यानी एज ए मदर जो है वो अल्लाह है, अल्लाह। और फिर इन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम के ताबूत तो लगा दिए, बहुत सारी तस्वीरें लगा दी जो आप देखेंगे गिरजाघरों में, और इन्होंने तसलीस में रूहुल कुद्दुस यानी जबरील अलैहिस्सलाम को शामिल कर लिया, अल्लाह अकबर। तो जब ये पूछा जाएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम पर इतना खौफ होगा, इतना खौफ, पूरे मजमे में, पूरे हश्र के मैदान में पूछा जाएगा। काला सुबहानका मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक, कि मैं ऐसी बात ही क्यों कहूँगा अल्लाह जिसका मुझे कहने का हक ही नहीं था। मैं कैसे कह सकता हूँ ये बात जिसका हक नहीं था, अल्लाह अकबर। और इतनी दहशत होगी, अल्लाह अकबर, इतनी दहशत होगी। इन कुंतु कुल्तुहु, और कहेंगे कि अगर मैंने ऐसा अल्लाह कहा, फ़क़द अलिमता, और तू तो खूब जानता है, तुझे तो इल्म हो गया होगा अगर मैंने ऐसे कहा है। तालमु मा फी नफ्सी, तू जानता है जो मेरे नफ्स में है, मेरे अंदर है। वला आलमु मा फी नफ्सिक, और मैं नहीं जानता अल्लाह तेरे अंदर क्या है। इन्नका अंता अल्लामुल गयूब, तू तो सारे इल्म जो हैं उनका जानने वाला है, कोई तेरे से इल्म छुपा हुआ नहीं है। देखिए, जैसे पहले मैंने कहा कि ईसाइयों के बहुत सारे फिरकों ने तसलीस का हिस्सा करार दे दिया, तीन, यानी तीन में से एक और एक में से तीन, अल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम और इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को। उनकी आप कलीसाओं में आप भी जाकर देखें तो तस्वीरें तो बनी हुई है मरियम अलैहिस्सलाम की, और इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह अकबर उनको स्लीप पर चढ़ाया गया, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ना मा सलाबूहू, कि ना वो कत्ल हुए ना उनको, बल्कि अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, अल्लाह अकबर। देखिए, असल बात यह है कि क्या बनेगा उस वक़्त, जो पूरे के पूरी ईसाइयत आज इस पर कायम है, और बहुत सारे जो लोग जो हैं जो बैठ के खानकाहों में रहबानियत पर आ गए हैं, या बहुत सारी औरतें ना शादी करती हैं, ना पहनती हैं अच्छा, ना खाती हैं और ना करती हैं, और इस उम्मीद पर है कि जी हम ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हमारी निजात का ज़रिया बनेगा, जबकि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ-गिछ हो रही है, अल्लाह अकबर। क्या होगा उन पर उस वक़्त, क्या होगा ईसाइयत जो पूरी इस पर है। जब ईसा अलैहिस्सलाम पूछ-गिछ होगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि अब हमारी तो शामत आ गई, अब हम कहाँ से बचेंगे। जिन्होंने ये कीदा का याद किया था, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने ऐसी बात ही नहीं की अल्लाह, मैं कहता तो आपके इल्म में तो है, आप जानते हैं जो मेरे अंदर है, और जो मैं बोलता हूँ आप तो मेरे अंदर तक जानते हैं कि मेरे अंदर क्या है, मेरी सोच क्या है। मैं तो नहीं जानता कि आपके अंदर क्या है, अल्लाह अकबर। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे मा कुल्तु लहुम, मैंने तो उनसे वही कहा था, इल्ला, मगर वही, मा अमरतनी बिही, जो आपने मुझे हुक्म दिया था, अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, एक अल्लाह की बंदगी, एक अल्लाह की इबादत करनी है जो मेरा भी रब है। ईसा अलैहिस्सलाम का कब कौन रब है, कौन है अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ही ईसा अलैहिस्सलाम का भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तमाम जो थे हवारी, जितने नसारा थे, जितने ईसाई थे, बाद में ईसाई का लफ्ज़ तो बाद में आया, नसारा थे, सबसे एक ही बात की थी कि तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, ए अल्लाह मैं उस वक़्त तक तो उनमें गवाह था जब तक मैं उनमें था, तो उस वक़्त की तो मैं गवाही दे सकता हूँ कि उस वक़्त तक तो क्या कह रहे थे, यानी वो तुझी को रब मांग रहे थे, मैं भी तुझी को रब कह रहा था। ये तसलीस का अकीदा नहीं चाहत हुआ था, और ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार नहीं दे रहे थे वो। फलम्मा, फिर जब, तवफ़्फ़यतनी, तुम ही उन पर निगहबान थे, मुझे तो नहीं पता उन्होंने बाद में क्या किया। ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर की आयतें पढ़े तो सही, अल्लाह अकबर। क्या होगा, मैं तो कह रहा हूँ कि जब ईसाइयों को पता चलेगा कि हम जिस अकीदे पर थे कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली चढ़ गया, हमने उनको मान लिया, अल्लाह का बेटा मान लिया, जो तसलीस का अकीदा है, रूहुल कुद्दुस को तो आप हमारी निजात और लाज़मी है, इसी पर कराया ईसाइयत, पूरे के पूरा जो दीन है। अल्लाह करे बात समझ में आए, हम सबको समझ में आए। तो अल्लाह फरमाने आप ही इन पर निगहबान थे।
वंता अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह आप हर चीज़ के पर गवाह हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया, अल्लाह अकबर, क्या लोगो तुम अल्लाह के पास जमा किए जाओगे जिससे तुम पहली दफ़ा पैदा हुए बगैर हथने बगैर लिबास। क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले जो लिबास पहनाएगा वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाएगा। हाँ, और मेरी उम्मत के कुछ लोगों को लाया जाएगा, उन्हें जहन्नम की तरफ लाया जाएगा और कहा तो मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ये तो मेरी उम्मती हैं। फरमाया जाएगा कि ऐ आपको नहीं पता ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्होंने आपके बाद शरीयत में क्या क्या नई बातें ईजाद कर ली थी। पर तो सही हदीस का हवाला मैं दे देता हूँ, निकाल ली थी। इस वक्त मैं कहूँगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा होगा, वही कहूँगा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा होगा कि अल्लाह मुझे तो इल्म नहीं था, जब तक मैं गवाह था उनमें तब तक तो मुझे इल्म था, मेरे बाद उन्होंने क्या किया, अल्लाह तू ही उन पर निगहबान है, मुझे तो इल्म नहीं, मैंने तो उनको तौहीद का पैगाम ही दिया था। अल्लाह अकबर। वही कहूँगा जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उनका हाल देखता था जब तू उनके दरमियान था, और फिर जब अल्लाह तूने मुझे अपने पास बुला लिया, मुझे अपने पास बुला लिया तो फिर ये 2 दिन से फिर गए तो मुझे इसका नहीं हुई इल्म। हाँ, तो ये सही बुखारी की हदीस है 4665। आज जो दीन में नई नई इजाज़त करके बड़े खुश हो रहे कि नए नए तरीके, नित नए तरीके निकाल रहे हैं, हदीस को पढ़ लें, सही बुखारी की हदीस है। गवाह तो अल्लाह ने तो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें तौहीद सिखाई, और आपके पूरा हदीस पढ़ लें, सही हदीस पढ़ लें, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जो नाज़िल हुआ कल्ब मुबारक पर कुरान पढ़ लें, बात तो समझ में आ जाएगी। एक शख्स ने आगे कहा माशाअल्लाह व मा शीता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी काम के जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें तो होना तो वही है। तो आप मैं आता चलता नहीं निद्दर लिल्ला, तो अल्लाह के मद्दे मुकाबले ठहराता है, अल्लाह के बराबर मुझे ठहराता है, बल्कि सिर्फ ये कि जो अल्लाह चाहे। जब इतना भी क्लियर कर दिया फिर भी लोगों को समझ ना आए, अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह ताला सूरह आराफ में पढ़ेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं अपने लिए भी किसी जो है भलाई का और बुराई का इख्तियार नहीं रखता, अगर चाहता तो बहुत सारी नेकी ले लेता और मुझे कोई गम ना पहुंचता। अल्लाह अकबर। कितनी जगह आप इस सूरह जो इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरह अल्लाह अकबर नाम और अल्लाह आराफ जो है, क्योंकि यहाँ तक तो हम ज़्यादा जो 4 सूरतें पढ़ी, पहली सूरत जो है उसके बारे में आता है मक्की है, बड़ी ज़बरदस्त सूरत, और मक्की और मदनी दोनों में ही सब मिले है कि नमाज जो है असल नमाज की जो है वो सूरह अल-फातिहा है। उसके बाद 4 बड़ी सूरतें हमने पढ़ी हैं, सूरह अल-बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा और सूरह जो है माइदा, और ये चारों में बहुत सारी जो है शरीयत की बातें हैं। अल्लाह अकबर। बहरहाल अगली आयत बड़ी ज़बरदस्त है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इन तो अज़िबहुम, ए अल्लाह अगर आप उनको अज़ाब दे तो ये आपके बंदे हैं, व इन तग़फ़िर लहुम व इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और फिर अल्लाह अगर आप इनको बख्श दे तो आप ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं, आपकी हिकमतें आप ही जानते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की रहमानियत, अपनी अब्दियत गिनवा कर और अल्लाह का मबूद होना गिनवा कर अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह आप इनको अज़ाब दें तो ये आपके बंदे हैं। अल्लाह अकबर। जिस तरह कोई माँ होती है तो माँ से 70 गुना ज़्यादा अल्लाह प्यार करने वाले हैं, तो कहा जाए कि ये आ गया, यही है नालायक जो बेटा है, अब जो सज़ा देनी है। तो यहाँ भी वह इन तग़फ़िर लहुम, और अगर आप इनको बख्श दें फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह बड़े ज़बरदस्त और बड़ी हिकमत के मालिक है, तमाम हिकमत आप ही के पास है। रवायत में आता है, इब्न कसीर में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जो है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो है वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात ये सारी रात नमाज में खड़े होकर ये आयत पढ़ते रहे, रोते रहे। किसके लिए? यकीन जाने मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए यही आयत पढ़ते रहे कि अल्लाह अगर तू इनको अज़ाब दे, हाँ कि अल्लाह ये जो भी मेरे उम्मती हैं अगर तू अज़ाब दे तो बंदे हैं, इन तग़फ़िर लहुम व इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू सब कुछ जानता है कि कौन क्या कर रहा है, मैं तो नहीं जानता, मैं तो इनके दिलों में क्या है मैं नहीं जानता। अल्लाह अकबर। जो बाद में भी आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। तो आप रोते रहे, सारी रात रोते रहे। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, क्या आप क्यों रोते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो रहमतुल्लिल आलमीन। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत की बख्शिश के मुतालिक मुझे अंदेशा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जिब्रील को ये पैगाम देकर भेजा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रंजीदा न हो, यकीनन आपकी उम्मत में से ऐसा रहमत का सलूक किया जाएगा जिससे आपको खुश कर दिया जाएगा, और इनसे ऐसा मामला ना होगा जो आपको नागवार गुजरे। लेकिन किन को मिलेगा ये सब कुछ? अगली आयत जो हमारे सबक की आज आखिरी आयत है वो पढ़ लेते हैं। काल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ स्वादिकीना
صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ ہی فائدہ پہنچائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے ایسی ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے دامنوں میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ، خالدینہ بھی خلد سے ہے اور ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اس آیت کے سب سے پہلے جو مستحق ہیں وہ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، ان کے حق میں یہ آیت آتی ہے۔ پھر جو بھی ان کی پیروی میں زندگی گزاریں گے، ایمان والوں کی طرح زندگی گزاریں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب کون ہیں یہ لوگ؟ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ایک دو آیتوں سے ہم ریفرنس کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 33 اور 34 میں، والذی جاء بالصدق، وہ لوگ جو سچ کے ساتھ آیا، تصدیق کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنی، اللہ کے رسول کی تصدیق کرنی، یوم آخرت کی تصدیق کرنی، ایمانیت میں سے نا، اچھی اور بری تقدیر کی تصدیق کرنی، فرشتوں کی تصدیق کرنے والے، تصدیق کرتے ہوئے اور اس کو سچ جان کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہے، وَصَدَّقَ بِهِ، اور انہوں نے سچ بولا اور اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی تو لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے پاس ان کے رب کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بدلہ ہے احسان کی روش پر چلنے والوں کے لیے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 اور 34 ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حجرات میں، کون ہے مومن، کون ہے سچے؟ پڑھتے جائیں قرآن پھر پتہ چلے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ فرمانے ایمان والے تو بس وہی ہیں، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر شکوں میں نہیں پڑتے کہ پتہ نہیں آگے جا کر یہاں بھی کچھ نہ فائدے مزے کریں گے، آگے جا کر بھی ملنے، شکوں میں نہیں پڑتے، پورا یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور سچے عمل بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ انفسہم، اللہ فرمانے باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی ہیں جو سچے ہیں۔ اور کون سچے ہیں؟ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 تھی، سورہ البقرہ آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہی صرف نیکی نہیں ہے کہ چہرے میں ایک خاص وضع کا بنا لو کہ جی ہم مسلمان ہیں، ولکن البر، وہ بنانا ہی ہے لیکن باقی چیزوں کو بھی بنانا ہے، اور قبلے کی طرف منہ کر کے ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم ایمان لاؤ، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں پر، والکتابی، اور اس کی کتابوں پر، والنبیین، اور اس کے نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور دے گا مال، اس کے باوجود کے مال سے بہت محبت ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین، کن کو؟ قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلا حق ہے، پھر یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافر جو ہیں ان کو، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے گا، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ عطا کرے گا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرے گا اپنا عہد وعدہ جو بھی کرے گا اس کو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کے ساتھ جمع رہے گا دین پر ہر حال میں، چاہے تکلیف ہو، چاہے غم ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے جنگ کا وقت ہو، اولئک الذین صدقوا، اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی ہیں جو تقوی کی روش پر ہے۔ اگلی آیت جو بس آخری آیت ہے سورہ المائدہ کی، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہی اور ملکیت، اختیار تمام آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی، وہ ما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ المائدہ مکمل ہوئی، اس میں جو بھی احکامات ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا